Students, we were discussing about the parts of flower, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. About calyx and corolla I have already told you in the previous video. Now let us discuss about the androecium. Androecium is the male reproductive part and it is composed of stamens which consists of filaments and an anther. Each anther is bilobed, means having two lobes, and each lobe has two chambers called pollen sacs. When stamens are attached to the petals, they are called as epipetalous. For example, in brinjal, जब स्टेमन्स पिटल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये टर्म्स आगे आपको काम आएंगी, तो उस वक्त हम इनको epipetalous कहते हैं. When stamens are attached to the perianth, they are called as epiphallus. अगर ये पेरियंथ के साथ जुड़े हुए होंगे तो इनको एपीफेलस कहते हैं, जैसे लिली फ्लावर है. और अगर ये पिटल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं तो एपीपेटलस इनको बोलते हैं. देन कम्स पॉलीएंड्रस, व्हेन स्टेमन्स आर फ्री, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं. देन मोनोएडेल्फस, व्हेन स्टेमन्स यूनाइटेड इन वन बंच, एक ही गुच्छे में होते हैं, एक बंडल में, जैसे चाइना रोज. Diadelphus, when stamens are united in two bundles, for example in pea. Polyadelphus, when stamens are united in more than two bundles, for example all the citrus fruit. This was about androecium. Now let us move towards the gynoecium, that is the female part of the flower. This is female reproductive part and is composed of stigma, style and ovary. Ovary is enlarged and swollen part and it comprises of number of ovules attached to cushion like placenta. Now what is apocarpus? More than one free carpel. अगर एक से ज़्यादा फ्री कार्पल होंगे, फॉर एग्जाम्पल इन रोज, it is known as apocarpus, and when carpels are fused then it is known as syncarpus. For example, tomato, mustard, etc. After fertilization, ovule develops into seed and the ovary matures into fruit. This is also very important line कि fertilization के बाद ovule जो है वो seed बनाता है और ovary जो है वो fruit बनाता है. What is placentation? Placentation is the arrangement of ovules in a ovary. It has following types: marginal, axial, parietal and basal. This is also very important to understand what is marginal, what is axial and what is parietal. First of all, you should know what is placentation. Again I would tell you, placentation means arrangement of ovules in the ovary. ओवरी में ओव्यूल्स किस तरह से अरेंज होते हैं, दैट इज़ नोन एज प्लेसेंटेशन. एंड आई वुड आल्सो शो यू द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन. मार्जिनल प्लेसेंटेशन फॉर्म्स अ रिज अलोंग वेंट्रल suture ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल्स फॉर्म टू रोज. प्लस इस किस्म की प्लेसेंटेशन मार्जिनल में क्या होता है कि ओव्यूल जो हैं वेंट्रल सुचर पे होते हैं, और जैसे मटर में आप देखेंगे ये यहाँ पर जो है दिस वन इज़ मार्जिनल. यहाँ आप देखते हैं सारे ओव्यूल जो हैं वो एक रिज पर होते हैं. देन कम्स एक्साइल. प्लेसेंटा इज एक्शियल एंड ओव्यूल्स अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, दैट इज़ B1. You see here in the diagram, this is axial presentation. This was parietal, correction, this was marginal and this is axial. And then comes parietal. This one, ovules develop on inner wall of the ovary. ओवरी के अंदर वाली वॉल्स में पाए जाते हैं. एंड दिस इज C portion. This is parietal. Then comes basal. Placenta develop at the base of the ovary and a single ovule is attached to it. इसमें जो है
ये लास्ट वन जो है आप देखेंगे सिंगल ओव्यूल है और इसमें बेस पर जो है ये होता है। तो हमारे पास प्लेसेंटेशन जो है आगे मार्जिनल, एक्साइल, पैरेटल एंड फ्री सेंट्रल भी एक है। फ्री सेंट्रल में आप देखेंगे कि यहाँ पर डी पोर्शन अगर आप देखेंगे तो सारे ओव्यूल जो हैं वो सब के सब सेंटर में हैं, तो इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फ्रूट। फ्रूट इज़ द मैच्योर और राइपन्ड ओरी। बेसिकली फ्रूट क्या होता है, अगर आपको एग्जाम में भी आता है व्हाट इज़ द फ्रूट, तो आप लिखेंगे फ्रूट इज़ द मैच्योर और राइपन्ड ओरी डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओरी पक जाती है उसी को हम फ्रूट कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन के बिना ही ओरी फ्रूट बनाती है तो ऐसे फ्रूट्स को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं सीडलेस फ्रूट। आजकल आप अंगूर देखते हैं, यहाँ तक कि मैंगोज़ भी ऐसे आ चुके हैं जो सीडलेस होते हैं, सारा जूस ही जूस उसमें होगा, बीच में गुठली जो है वो बिल्कुल नहीं होती है। जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। नॉर्मली जो है फ्रूट में होता क्या है, एक छोटी सी वॉल होती है और इसमें पेरिकार्प होता है और सीड होता है। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है। जब पेरिकार्प मोटा हो, थिक हो, फ्लैशी हो तो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकार्प बाहर वाला, मिडल मेसोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प। कब? जब पेरिकार्प मोटा हो और फ्लैशी हो। फॉर एग्जाम्पल इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज़ नोन एज ड्रूप। मैंगो और कोकोनट के जो फ्रूट है इनको ड्रूप भी कहते हैं। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओरी। ये पीछे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सिंगल इसमें ओरी होती है और सुपीरियर ओरी है मोनोकार्पेलरी एंड और वन सीडेड, इनमें एक ही सीड होता है। In botany, what is a drupe? A drupe is an indehiscent fruit in which outer part surrounds a single cell of hardened endocarp with a seed inside. एग्जाम्पल है हमारे पास चेरी है, पीच है, अलाइव है। ड्रूप किसको बोलते हैं? ऐसा फ्रूट जिसमें आउटर पार्ट एक सिंगल शेल से कवर करता है, नीचे उसके हार्ड एंडोकार्प होता है और उसके अंदर एक सीड होता है। What is seed? The ovules after fertilization develops into seeds. ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ये सीड बनाते हैं, और सीड में क्या होता है? सीड इज़ मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में क्या क्या होता है ये भी पीछे बता चुके हैं आपको। एक रेडिकल होता है, एक एम्ब्रियोनियल एक्सिस होता है एंड 1 और 2 कॉटिलिडन्स होता है। अगर डाइकॉट होगा तो 2 कॉटिलिडन्स हो गए, मोनोकॉट होगा तो सिंगल कॉटिलिडन्स होगा। आइए हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकॉट और डाइकॉटिलिडन सीड। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स। डाइकॉट्स की सीड कोट के 2 लेयर्स होती हैं, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमन। हेलियम इज़ अ सकार ऑन सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट। अगर फ्रूट को गौर से देखेंगे किसी भी सीड को, वो सीड जो है फ्रूट के साथ कहाँ से जुड़ा हुआ था, वहाँ एक निशान सा होता है, उसी निशान को हीलियम कहते हैं। और साथ में ही उसके एक छोटा सा होल होता है जहाँ से वाटर और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। विद इन द सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है जिसमें एम्ब्रियोनियल एक्सिस होती है और 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, हम क्योंकि डाइकॉट की बात कर रहे हैं। एट द 2 ends of embryonal axis are present radicle and plumule. Radicle gives rise to root system and plumule gives rise to shoot system. सीड के अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, एक रेडिकल पोर्शन जो रूट सिस्टम को डेवलप करता है, एक प्लम्यूल और एक एम्ब्रियोनियल एक्सिस। एंडोस्पर्मिक सीड्स इन विच एंडोस्पर्म्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन।
एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से होते हैं? जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है, फॉर एग्जांपल कैस्टर। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होता है मैच्योर सीड में, जैसे बीन है, ग्राम है, पी है। और मोनोकॉट सीड्स जो हैं, जनरली मोनोकॉट सीड्स में सिंगल कॉटिलिडन होता है और ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। आउटर कवरिंग जो है वो एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है एम्ब्रियो से बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन। इसमें एक एम्ब्रियो के अंदर एक सिंगल बड़ा सा शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन होता है जिसको सिक्योटिलम भी कहते हैं। एंड शॉर्ट एक्सिस विद अ रेडिकल एंड प्लम्यूल। रेडिकल और प्लम्यूल भी होता है, लेकिन एक्सिस जो है वो छोटा होता है। प्लम्यूल इज एनक्लोज इन अ शीथ नोन एज कोलियोपटाइल। प्लम्यूल जो है उसको कवर्ड होता है, उसको कोलियोपटाइल कहते हैं। और रेडिकल कवर होता है जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कोलियोराइजा। थैंक यू वेरी मच।